Hi everyone, I am so excited to begin this journey with you guys. I am Priyanka Zadav and you all are welcome on my channel. This video is for those students who have completed with their Indian Contract Act 1872. Please do not forget that it is 1872 and not 1972. Most of the students make this mistake. So here I am with this video to make sure that you guys don't forget your sections as well in exam. Like as a student, I remember having lots of section in this particular uh, act, Indian Contract Act. There were many sections, and how I used to learn them is with the help of some mnemonics. Now, what is mnemonics? It's a memory technique. So without any further ado, I'm going to take you to all those memory techniques that I have prepared for you guys, and I hope you like it. And if you do, let me know in the comment section below so I can make more videos on them. Okay, so here we begin with our today's all memory techniques that I'm going to share with you all. Okay, so always remember the memory technique should be related to the word itself, otherwise you're going to forget. I am 100% sure you're going to forget. See, most of the time we have to connect it by the word, otherwise we may end up forgetting. So our aim is to not forget in exams, especially these MCQ patterns. We all are aware that when there are MCQ pattern, we have to give the specific answer. You can thokify anything in big answers, but not in MCQ. You have to remember. So this particular is a chapter, a Indian Contract Act is for anyone, for someone who is in CPT, that is CA Foundation, someone who is doing anything related to law, students from commerce background who have taken law subjects, MCOM who has taken law subjects, and if they have this particular chapter, this video is for you guys. So beginning with definition of agreement, can you see the spelling of agreement, guys? It has two E. So only for the definition of agreement, I'm going to tell you that 2E is related to the double E. Say 2E. Agreement में भी 2E है, तो हम लोग उसको section कौन सा दे देंगे? 2E. Moving on to the another one. Next one is definition of contract. See, I'll ask you basic questions. What is the spelling of they? It starts with THEY. What is the spelling of there? This one. The other one, the other there. Then the spelling of thunder. There are so many spelling that I think, like in my imagination, most of the spelling after T comes edge. So in contract, since there are two T, what I'm doing is I'm linking that T to edge. Now how can I link it? With these help of this spelling, that imagining, you know most of the spelling after Q comes U, right? So here also I'm connecting T with edge by stating that there are most of the spelling that after T comes edge. So I am in that way I'm trying to connect this two. Okay, so now I'll be leaving the voidable contract and voidable agreement. We'll do that later. Why, I'll tell you at that time. Okay, now, okay guys, one more thing. This is not the only mnemonics that you have to follow. If you can come up with your own, well and good, please go ahead and do it. If not, you can watch this video 2-3 times so you don't forget this. Okay, now acceptance is how will you relate it to B? The first idea is कि A के बाद आता है B, और ये अगर नहीं याद रहता तो एक्सेप्टेंस के बाद ही जो होना है वो होगा. पहले आप कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो उसके बाद ही तो होगा, तो डेफिनेटली ए के बाद बी यानी एक्सेप्टेंस के बाद, तो हम इसको बी दे देंगे एक्सेप्टेंस को. ठीक है, विल ऑफ कोर्स विल लीव रेस्टिट्यूशन एंड विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दीज टू. ओके गाइज, रिमेंबर वॉइड एंड वॉइड. ये जो वॉइड वाला सेक्शन है इसमें दो आते हैं, जी और जे. अब आप जी किसको दोगे, जे किसको देंगे, आपको ये तो याद रखना ही होगा कि वॉइड, दोनों वॉइड में जी और जे आते हैं, दोनों भी सिमिलर साउंड करते हैं, आस पास है, तो इतना याद रख लो कि जी और जे जो है वो वॉइड वाले को चले जाते हैं. तो अब हम जी किसको देंगे, हम जी उसको देंगे जिसके स्पेलिंग में जी आता है. किसके स्पेलिंग में आता है, वर्ड एग्रीमेंट के स्पेलिंग में जी आता है, तो विल बी गिविंग दिस जी टू वर्ड एग्रीमेंट टू जी. तो बचा क्या, जे, तो ये हम वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को दे देंगे. ठीक है,
नाउ देयर इज़ अ स्टोरी कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, ठीक है। रेस्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी. इफ़ यू वांट एनी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लेट मी know in the comment section. I'll come up with the video, but in this particular video it's only for those students who have already completed with their studying, and all they are looking for is how do I learn the sections. So that's it. It's like a revision to you guys, and not a particular video on explanation regarding topics or concepts, okay. So please, if you're not understanding what this video is about, I'll suggest you to go back, study Indian Contract Act, and then come back, okay. Yeah. So restitution. So ये जो restitution है, ये बोला कि यार मुझे नहीं चाहिए ये अल्फ़ाबेट्स, आई डोंट वांट इट. तुमने बोला ठीक है मत ले, तो क्या चाहिए. He's like, I'll take my favorite number, and that is 64. What did restitution say? Restitution said that he is a guy who do not want any kind of alphabets. He's happy with his numericals. So we asked him, what's your favorite number? And he said 64. What did he say? He said 64. हमने बोला एक तो ले ले, एक तो अल्फ़ाबेट ले ले. He's like, no, मुझे एक भी नहीं चाहिए. We're like, okay, your choice. Next, we'll go back where we left this particular one. Okay, now definition of voidable contract. How do we learn this? Voidable contract. Restitution ने बोला मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए अल्फ़ाबेट्स. voidable contract क्या बोलता है, मुझे चलेगा भी और नहीं भी. तो उसको बोला हमने तेरा फेवरेट नंबर क्या है, उसने बोला 19. हमने बोला ओके, तो तूने बोला तुझे चाहिए भी और नहीं भी, तो एक काम कर ले, तुम 19 भी रख ले और 19A रख ले. ए पहला ही अल्फ़ाबेट है, तेरे को ईजी रहेगा याद रखने के लिए. तो बोला ठीक है. तो वॉइडेबल डेफिनेशन जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, डू नॉट फॉरगेट इट्स नॉट एन एग्रीमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ने बोला मैं दो लेने के लिए तैयार हूँ. एक मैं अपना फेवरेट नंबर लूँगा 19, और दूसरा मैं उसके साथ ले लेता हूँ एक अल्फ़ाबेट ए. सो 19 एंड 19A इसका है वॉइडेबल एग्रीमेंट. नाउ हमने अभी तक वॉइड या वॉइडेबल के लिए कोई भी अल्फ़ाबेट से कनेक्शन नहीं किया था. तो यू डू नॉट फॉरगेट दैट एग्रीमेंट के लिए हम इसका वॉइडेबल का आई ले लेंगे. क्या लेंगे, वॉइडेबल का आई लेंगे हम लोग. इसको याद आपको मैं वापस रिपीट करूँगी तब क्लिक होगा यहाँ, क्योंकि मैंने आपको उल्टा फुल्टा कराया है तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज. एंड विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये अंडर सेक्शन 3 पता है क्यों दिया है, क्योंकि हम इसके और 3 पहलू को जानने वाले हैं यहाँ पे. तो इसलिए हमने बोला यार तू एक काम कर ले, सेक्शन ही अंडर 3 रख ले. सो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन कम्स अंडर सेक्शन 3. क्यों हमने इसको 3 दिया, क्योंकि इसके नीचे और 3 लोग आएंगे. वो 3 लोग कौन है, तो वो 3 लोग हैं. एक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. जब आप किसी को अपना ऑफर कम्युनिकेट करते हो तो वो आता है अंडर सेक्शन 4 पैरा 1. ये इसका 1 है, ठीक है. और अंडर सेक्शन 4 याद रख लो. देन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. जब आप किसी को ऑफर करते हो और उस बंदे ने एक्सेप्ट कर ली तो उसको अंडर सेक्शन 4 रखेंगे और उसको बोलेंगे हम तुम्हें पैरा 2 दे रहे, क्योंकि ये सेकंड स्टेप है. पहली स्टेप है ऑफर करना, तो हमने उसको पैरा 1 दे दिया. सेकंड स्टेप क्या है, एक्सेप्टेंस करना, तो हमने उसको पैरा 2 दे दिया. थर्ड इज रेवोकेशन. जो आपने ऑफर दिया था या फिर एक्सेप्टेंस किसी का भी रेवोकेशन कर लेना, तो वो हो गया अंडर सेक्शन 4 पैरा 3, ठीक है. तो अंडर सेक्शन 4 पैरा 3 ये हो गया हमारा रेवोकेशन का. नाउ ये जो लास्ट वाला है, टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसमें दोनों के बारे में दिया है कि टाइम के बारे में बोला है कि कैसे हम इसके टाइम को निकालेंगे. अंडर सेक्शन 5. क्यों 5 क्यों दिया है हमने इसको, क्योंकि गाइज अगर आप लोग देख सकते हो तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड. इसको इसी तरह से याद रखोगे तो ही ये बनेगा, इसलिए मैंने इसको अलग अलग स्लाइड्स में भी बनाया है. ये फिफ्थ इसमें आता है, इसीलिए हम इसको अंडर सेक्शन 5 दे रहे हैं, इसलिए हम इसको अंडर सेक्शन 5 दे रहे हैं. आई वुड लव टू रिपीट अगेन. मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडर सेक्शन 3. वाई 3, क्योंकि इसके नीचे 3 लोग आने वाले हैं. वो 3 लोग कौन है, पहला है ऑफर, दूसरा है एक्सेप्टेंस, तीसरा है रेवोकेशन. इनके सेक्शन जो है वो 4 है, तीनों के भी 4 है. और पैरा हम इनको स्टेप वाइज देते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऑफर होता है, ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है और फिर उसका रेवोकेशन होता है, तो इस तरह. और जो टाइम है फॉर रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसको हमने 5th इसलिए दिया क्योंकि ये इस स्लाइड में 5th नंबर पे हमने रखा है. वी आर लर्निंग इट इन दैट वे, ओके.
नाउ दिस वन इज़ वेरी इजी गाइज, ये बहुत इजी है। यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। यार कंसिडरेशन में डी आता है, हम इसको 2D दे देंगे। कंसिडरेशन में 2 आता है, हम इसको 2D दे रहे हैं। इसमें कुछ लर्न करने वाली बात नहीं है, आपको वर्ड देखना है, आपको सेक्शन याद रहेगा। कंसिडरेशन डी आता है, 2D दे दो इसको। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन नहीं रखोगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये भी एक इकलौता है जिसका है नंबर अंडर सेक्शन 25। इसको इसी तरह याद कर लो कि नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 25। इसमें कुछ लर्न करने जैसा है भी नहीं, इकलौता ऐसा है कि नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, इतनी बड़ी लाइन है। 25 अंडर सेक्शन 25। नाउ दिस इज फॉर यू गाइज टू सॉल्व। प्लीज़ डो नॉट चीट, पॉज कर लो इस वीडियो को और कोशिश करो इसे सॉल्व करने की। इन केस यू हैव फॉरगॉटन, प्लीज़ डोंट गो टू नेक्स्ट फॉरवर्ड करके और आंसर्स देख लो। गो बैक, लर्न एंड कम अगेन एंड ट्राई सॉल्विंग इट। दिस इज द एम। एम कॉपी करना नहीं है, एम जो है वो लर्न करना है। तो एक काम करते हैं, एक बार फिर से फटाक से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके, नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका जो ईयर है वो 1872 है, 1972 नहीं है, डू नॉट फॉरगेट। नेक्स्ट, अब इसका जो है डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि एग्रीमेंट के स्पेलिंग में 2 बार ही आते हैं। तो हम इसको डेफिनेशन, हम इसको सेक्शन क्या देंगे, अंडर सेक्शन 2E, क्योंकि इसके अंदर 2E आते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर टी के बाद एच आता है। ऐसा हमने हमारे दिमाग को समझाया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग में टी के बाद एच ही आता है। तो हमने क्या किया, टी के बाद एच दे दिया। क्या दे दिया, टी के बाद एच। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अंडर सेक्शन 2H हो गया। मूविंग ऑन, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन डेफिनेशन ऑफ वॉइडेबल एग्रीमेंट अगर हम करते हैं, सिर्फ वॉइडेबल अग्रीमेंट, डू नॉट फॉरगेट, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, या एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो वॉइडेबल में आई आता है तो हम इसको 2I दे देंगे। क्या देंगे, 2I दे देंगे। नाउ ओके, एक्सेप्टेंस, ए के बाद आता है बी। एक्सेप्टेंस के बाद जो होना है वही होगा, तो वो जब भी हम एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद ही हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ए के बाद बी, सो एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 2B। रेस्टिट्यूशन बोला कि देखो भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है अल्फ़ाबेट से, आई ओनली वांट न्यूमेरिकल्स। तो हमने उसको बोला भाई बता तेरा फेवरेट और या लकी नंबर क्या है। उसने बोला 64, सो रेस्टिट्यूशन टुक अंडर सेक्शन 64। एंड देन what happened is we'll go back and we'll talk about so voidable contract। याद रखना voidable agreement 2I है क्योंकि voidable I आता है उसमें। voidable contract की बात थी तो voidable contract बोला कि I have no issues with alphabets, okay, लेकिन मुझे नंबर भी चाहिए अलग से। हमने बोला ठीक है चल तू 2 नंबर रख ले, तेरा फेवरेट नंबर कौन सा। उसने बोला 19। हमने बोला टेक 19 और एक काम कर ले अलग से रखें 19A। तो 19A ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। वॉइडेबल अग्रीमेंट का आई आएगा और फिर हम आगे जाएंगे। सो अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉइडेबल एग्रीमेंट पहले आता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बाद में आता है। इन दोनों के बड़े अजीब अजीब सेक्शंस है, जी और आई इसका जो है वो सेक्शन है। सो जी और जे, आई एम सॉरी, जी एंड जे इसके अंडर सेक्शंस है। तो कैसे हम इसको लिंक करेंगे, दोनों साउंड सिमिलर करते, लेकिन जी किसको दे, जी उसको देंगे जिसके स्पेलिंग में आ जाता है जी। तो वॉइड एग्रीमेंट में जो है जी आता है तो हम उसको दे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता तो क्या बचा, जे बचा, तो हम इसे दे देंगे। डन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी दिस वन इज ओके। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हमने बोला कि यार इसके आगे हम इस टॉपिक पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, 1, 2 और 3। तो क्यों ना हम इन्हें इसे सेक्शन 3 दे दे और फिर उसके बाद जो पहला आएगा वो सबसे पहला आता है ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जब कोई ऑफर करेगा तब एक्सेप्टेंस होगा किसी को, उसके बाद रेवोकेशन अगर करना होगा तो वो कर लेंगे। इसके सेक्शंस तो 4 है, लेकिन इसको पैरा हम एज अ स्टेप दे रहे हैं कि भाई सबसे पहले आता है एक ऑफर, उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, उसके बाद आता है रेवोकेशन, ठीक है।
फिफ्थ वाला जो हमने इस स्लाइड में रखा था वो ये था कि भाई देखो, ये जो टाइम है, टाइम फॉर रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे आता है। तो हमने इसको दे दिया अंडर सेक्शन 5। ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये सिर्फ एग्ज़ाम में हेल्प लाने के लिए है। तो आप लोग इतना सीरियसली मत घुसिए कि क्या बोल रही है, ठीक है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स, दैट वी डू नॉट फॉरगेट इट। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 25 हमने पढ़ लिया है, इसको ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना क्या है, नो कंसिडरेशन, ये नंबर भी आसान है ना याद रखना। हाँ, अगर हम बात करेंगे रेस्टिट्यूशन की तो वो कभी कभी हो सकता है हमें याद ना रहे, लेकिन 25 याद रहने में क्या प्रॉब्लम है। एंड डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, सो जो डी आता है इसमें तो 2D। ना मुझे एक बात बताओ, ओके सो अब मुझे एक बात बताओ कि आई एम श्योर कि अब तक आपने अगर वापस एक बार पढ़ लिया होगा तो आपको याद हो गए होंगे। अब मैं आप लोगों को आपके साथ ही सॉल्व करूँगी, लेकिन अगर यू वांट टू सॉल्व इट ऑल बाय योरसेल्फ, प्लीज़ डू इट। प्लीज़ इसको पॉज कीजिए, पेपर लीजिए और एकदम से सॉल्व करके देखिए, और फिर देखिए कि मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके साथ आपका मैच होता है या नहीं, ठीक है। नाउ सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या पढ़ा था हमने मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, कि उसमें उसके अंदर 3 चीज़ें आती है। कितनी चीज़ें आती है? 3 चीज़ें। तो ढूंढो इसमें 3 कहाँ है। क्या इसमें कुछ 3 मिल दिख रहा है तुमको? सेक्शन 3, हाँ जी दिख रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है 4, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो यार, वॉइड के बारे में हमारी क्या बात हुई थी कि 2 चीज़ें हैं वॉइड में, एक है वॉइड एग्रीमेंट, एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों का एक सिमिलर सेक्शन है, जी और जे। तो हम उसमें से जी किसको देंगे और जे किसको देंगे? तो हमारा तय हुआ था कि जी हम एग्रीमेंट को देंगे क्योंकि उसके स्पेलिंग में जी आता है। तो जो बचा जे वो हम किसको देंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को। तो प्लीज़ फाइंड आउट। ओके, ये देखो 6th वाला जो है वो यहाँ पे है। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, ये तो बहुत इजी है, आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि आपको हमेशा वर्ड्स से ढूंढना है, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ से नहीं ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड इट फ्रॉम द वर्ड्स इटसेल्फ। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट इज 2E, क्योंकि इसमें 2E आते हैं। ढूंढो ढूंढो। ओके, 7th वाला जो है वो है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ, नहीं डी वाला, सॉरी, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। कुछ याद आया? देखो हमने पढ़ा था मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसके नीचे 3 चीज़ें थी। वो 3 चीज़ें कौन सी थी? एक थी सबसे पहले ऑफर, ऑफर के बाद ही हम करते एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद आया था रेवोकेशन, यानी वो था अंडर सेक्शन 4। और क्योंकि वो पैरा कितना था? तीसरा, मतलब थर्ड स्टेप था ना, पहले ऑफर फिर एक्सेप्टेंस और फिर उसके बाद था रेवोकेशन, तो वो था पैरा 3। तो यह आपको कहीं दिख रहा है? जी हाँ, मुझे तो दिख रहा है थर्ड वाले में, एकदम बिल्कुल सही। नाउ डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, अगेन ये एग्रीमेंट के तरह ही है। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट जैसे बहुत आसान है, इवन डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वली वेरी वेरी इजी, बिकॉज ऑल वी डिड वाज, इसमें डी आता है तो हमने इसको 2D दे दिया था, तो ये हो गया सेकेंड इस पे। नेक्स्ट इज रेस्टिट्यूशन। ये भाई साहब वो है जो नखरे दिखा रहे थे कि मुझे अल्फ़ाबेट्स नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विथ माई लकी नंबर। तो इनका लकी नंबर क्या था? 64। तो ये हो गया फर्स्ट। एक्सेप्टेंस, जब ए के बाद आता है बी और जब एक्सेप्टेंस होता है उसी के बाद जो होना है वो होता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि ए के बाद आता है बी, तो हम एक्सेप्टेंस को दे देंगे बी, और वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। ओके, 5th पे है, ग्रेट। या वॉइड एग्रीमेंट, ये जनाब इनके जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के कज़न या फिर ट्विन लगते हैं। तो एग्रीमेंट, क्योंकि हमारा इस पे बात हुई थी कि इनके पास जी है तो हम इन्हें जी दे देंगे। तो ये जी है कहाँ? तो ये इन्हीं के सामने है 8। सो हियर वी आर गाइस, हमने ये सब कर लिया है, तो इसका एक बार आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। 4673, इज इट 4673? 2158, 2158, यस एग्जैक्टली। इसी मैंने आप लोगों के साथ ही सॉल्व किया है उन निमोनिक्स को बोल बोल के। सो आई हैवेंट just given the answer like that. I have tried to connect each and everything. So guys, this was my video for you all. If you have learned even slightest from this video, make sure you give it a like, you subscribe to the channel,
also you hit the bell icon so you will keep getting the notification as and when I will upload videos related to your topics. And please let me know in the comment section below how you have loved this particular video or this session, and if you want more on any topic, you can just write down and tell me that what topic you want mnemonics for, and I will be there with that topic. Okay, so till then, watch this video 2 3 times so you don't forget, and I will come up with many such mnemonics soon. Bye bye and thank you.